આ ન્યૂઝના પ્રાયોજક છે ટેટુ એન્ડ નેલ સ્ટુડિયો. અમારું સરનામું છે ઓમ બિઝનેસ પ્લાઝા, સર્કિટ હાઉસની સામે, હાલર રોડ, વલસાડ. અને પ્રીત એસ્ટેટ એજન્સી. ફ્લેટ, બંગલો, પ્લોટ, વાડી, ફાર્મ હાઉસ, ફેક્ટરી તેમજ ઓફિસના લેવેચ માટે અથવા ભાડા માટે સંપર્ક કરો. લોકસભા ચૂંટણી 2024ના દમણ દીવના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કેતન પટેલ અને દાદરા નગર હવેલીના ઉમેદવાર અજીત મહાલાના ચૂંટણી પ્રચાર માટે કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ દમણમાં જનસભાને સંબોધિત કરી હતી. જનસભામાં રાહુલ ગાંધીએ ભાજપ પાર્ટી, નરેન્દ્ર મોદી, અંબાણી, અદાણી અને દમણ દીવ દાદરા નગર હવેલીના પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલને આડે હાથે લઈ બંને કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને આ ચૂંટણીમાં બહુમત સાથે જીતાડવા આહવાન કર્યું હતું. રવિવારે રાહુલ ગાંધી ઓરિસ્સાના કેન્દ્રપરા ખાતે જંગી જનસભાને સંબોધન કરી દમણ આવ્યા હતા. દમણમાં મોટી દમણ લાઇટ હાઉસ ખાતે રાહુલ ગાંધીએ ઉપસ્થિત દમણ દીવની જનતાને સંબોધન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે રાહુલ ગાંધીએ દમણ દીવના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કેતન પટેલ અને દાદરાનગર હવેલીના ઉમેદવાર અજીત મહાલાને મત આપી વિજયી બનાવવા ઉપસ્થિત મતદારોને અપીલ કરી હતી. રાહુલ ગાંધીએ પોતાના સંબોધનમાં ભાજપ સરકાર અને નરેન્દ્ર મોદી પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. રાહુલ ગાંધીએ ઉપસ્થિત જનમેદનીને સંબોધન કરતા જણાવ્યું હતું કે ભારતના ઇતિહાસમાં આ પહેલી ચૂંટણી છે જેમાં અલગ અલગ વિચારધારાની લડાઈ છે. કોંગ્રેસ દરેક અલગ પ્રદેશ, રાજ્યની, સંસ્કૃતિની, ભાષાની રક્ષા કરવાની વાત કરે છે, જ્યારે બીજી તરફ ભાજપ આરએસએસ એક દેશ, એક ભાષા અને એક લીડરની વાત કરે છે, જેની સામે આ લડાઈ છે. દમણ દીવના પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલ પર આકરા પ્રહાર કરતા રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે દમણ દીવ દાદરાનગર હવેલીના લોકો માટે તકલીફ એ છે કે નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રફુલ્લ પટેલને તેઓની ઉપર રાજાની જેમ બેસાડી દીધો છે, જે લોકોના ઘર તોડી રહ્યો છે, લોકોને તંગ કરી રહ્યો છે. આવું પૂરા દેશમાં થઈ રહ્યું છે. નરેન્દ્ર મોદી પાસે સીબીઆઈ, ઈડી, આઈટી, પોલીસ બધી જ સંસ્થાઓ છે. તે સંવિધાનને ખતમ કરી 20થી 22 અરબપતિઓને ફાયદો કરાવવા માંગે છે. ખેડૂતો, વિદ્યાર્થીઓ, વેપારીઓને નુકસાન કરી અદાણી અંબાણીને ફાયદો કરાવ્યો છે. જો ભાજપ આવા 20-25 લોકોને અરબપતિ બનાવી શકે છે તો કોંગ્રેસ કરોડો દેશવાસીઓને લખપતિ બનાવી શકે છે, જે અંગે તેને કોંગ્રેસની 5 ન્યાય યોજનાની વાત કરી હતી. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે અમારો મેનિફેસ્ટો ક્રાંતિકારી મેનિફેસ્ટો છે. દમણ દીવનો વિસ્તાર માછીમારી માટે પણ જાણીતો હોય અહીંના માછીમારો અંગે પણ તેમણે વિશેષ જાહેરાત કરી હતી અને તેમની તકલીફોની વાત કરી હતી. અંતમાં રાહુલ ગાંધીએ કેતન પટેલ અને અજીત મહાલાને સમર્થન આપો, કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને બહુમતથી જીતાડવા પ્રફુલ્લ પટેલને ભગાવવાની વાત કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે રાહુલ ગાંધીએ આ ઉપરાંત નરેન્દ્ર મોદી સરકારમાં વધેલી બેરોજગારી, મોંઘવારી, ભ્રષ્ટાચાર જેવા મુદ્દાઓ ઉઠાવી અનેક આક્ષેપો કરી આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે દમણ દીવમાં પ્રશાસન દ્વારા સ્થાનિક લોકોની થતી હેરાનગતિ પર પણ પ્રહાર કર્યા હતા. મોટી દમણ ખાતે રાહુલ ગાંધીને સંભળવા દમણ દીવ ઉપરાંત વલસાડ જિલ્લામાંથી પણ કોંગ્રેસી કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. દમણમાં કેતન પટેલના ચૂંટણી પ્રચાર માટે આવેલા રાહુલ ગાંધીનું કોંગ્રેસના નેતાઓએ સ્વાગત કરી ઉત્સાહભેર આવકાર આપ્યો હતો. ठाकरे जी, महेश शर्मा जी, हमारे कैंडिडेट्स केतन पटेल जी, अजीत माला जी, अलग अलग प्रदेश हैं, अलग भाषाएं हैं, अलग इतिहास है, हिस्ट्री है, कल्चर है और हर जगह का अपना एक प्रकार से इस लड़ाई हो रही है. एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो कहती है हिस्ट्री है, भाषा है, उसकी रक्षा होनी चाहिए और हर प्रदेश को या हर जगह को उसी जगह बैठते होते थे. अब वैसे ही प्रफुल्ल पटेल यहाँ के और राजा को दिल्ली से बैठाया गया है. इतनी छूट है, दिल खोल के करो. और प्रफुल्ल पटेल जी यहाँ के राजा जो मन में आता है वो करते रहते हैं, आप लोगों को तंग करते रहते हैं. अब आप सोच रहे हो कि नहीं भाई ये तो हमारे साथ हो रहा है सिर्फ, मगर ये पूरे देश में हो रहा है. आप सोचिए, तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है, बंगाल में बंगाली, आज हिंदुस्तान के चुनाव में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई हो रही है. एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो कहती है
कि हर जगह की जो पहचान है, जो कल्चर है, हिस्ट्री है, भाषा है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है नहीं, एक देश, एक भाषा और एक लीडर, यह लड़ाई है। अब आपकी मुसीबत यह है कि यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने प्रफुल्ल पटेल जी को राजा जैसे आपके सिर के ऊपर बैठा रखा है, और राजा को कहा गया है कि तुम राजा हो, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। घर तोड़ने घर तोड़ दो, लोगों को तंग करना है तंग करो, जो भी करना है खुली छूट है, दिल खोल के करो। और प्रफुल्ल पटेल जी यहां के राजा जो मन में आता है वो करते रहते हैं, आप लोगों को तंग करते रहते हैं। तो फर्क यह है कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं, और जो हिंदुस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने दिया, उसकी रक्षा हम कर रहे हैं। और वो उनका लक्ष्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसको खत्म किसी ना किसी तरह, आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इसको खत्म कर दिया जाए। आप कहोगे ये संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो आपका सुंदर बीच है, ये जो आपकी इतनी सुंदर लोकेशन है, इस किले पे अदानी जी का नाम लिख दिया जाए। वो चाहते हैं कि इस बीच पे अगर टूरिस्ट आए तो आपको फायदा ना हो, बीच पे साइन हो अदानी बीच। हिंदुस्तान के 22-25 अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है? 25 साल मनरेगा में जितना भी पैसा लगा, 25 साल अगर आप वो पैसा ले लो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया है। किसानों का कितना माफ किया? 1 रुपया नहीं माफ किया। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनका कितना कर्जा माफ किया? 1 रुपया नहीं किया। छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। किसको फायदा हुआ? यहां पे एक आदमी नहीं है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ हो। अदानी, अंबानी, आप मुझे बताओ, यहां पे कोई एक व्यक्ति है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ है? कि अगर ये बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी 20-25 अरबपति बना सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति बना सकती है। जैसे ही दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो प्रफुल्ल पटेल को ना हम यहां से आउट करके 2 मिनट में, और जो उसने यहां पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया ना, जो पूरा भ्रष्टाचार किया है, घर तोड़े हैं, उसका पूरा दादागिरी जो है उसको सीधा टाइट कर देंगे। तो मैं आपसे बस ये कहने आया हूं कि जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपका कल्चर है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। और उसकी रक्षा प्रफुल्ल पटेल नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो। आपको अधिकार मिलना चाहिए, आपको ही अपना सिस्टम चलाना चाहिए। यह नहीं कि आपके ऊपर किसी को बैठा दिया और वो राजा जैसे आप पर राज कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये लोग 22-25 लोगों को अरबों रुपए दे सकते हैं, तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, यहां खड़े होकर कह रहा हूं,
जितने पैसे इन्होंने 22-25 लोग को दिए ना, हम लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को देने जा रहे हैं। आपने 10 साल 20-25 लोगों का काम किया, अब हम अगले 10 साल जितना पैसा आपने उनको दिया उतना ही पैसा हम किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं को, माताएं बहनों को देने जा रहे हैं। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। मैंने 5 चीजों के बारे में बोला है, मगर उसमें सब लोगों के लिए हमने कुछ ना कुछ सोच कर दिया है। यहां पे मछुआरे बहुत हैं, आपको बहुत नुकसान हुआ है, आपकी बोट ले जाते हैं लोग, तो आपके लिए मैनिफेस्टो में आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी चीजें हमने की हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जो पहले आपको डीजल की सब्सिडी मिलती थी, जो बंद कर गई, उसको हम फिर से चालू कर देंगे। दूसरी बात, जो भी बोट, फिशिंग बोट होगी, उसका हम आपको इंश्योरेंस देंगे। और तीसरी बात, जो इनलैंड फिशिंग और एक्वाकल्चर है, उसको हम एग्रीकल्चर जैसे मानेंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। यहां पे आप केतन पटेल जी और अजीत माला जी को पूरा समर्थन दीजिए और कांग्रेस पार्टी को जिताइए, जबरदस्त बहुमत से जिताइए। और ये जो है यहां पे आपके एडमिनिस्ट्रेटर, इसे भगाइए भाई, 15 मिनट नहीं लगेंगे। और ये सिर्फ भागेगा नहीं, सिर्फ आपसे नहीं भागेगा, ये फिर कार्रवाई शुरू होगी तो आगे पीछे भागेगा। धन्यवाद।